Welcome to dual nature of matter and radiation. Why we are considering these two here, the radiation and the matter only? Because the entire universe can be divided broadly in two categories and only these two categories. Everything that is around us we observe is either matter or energy, and the energy that we experience around us or even within us, that energy is mainly basically received from the everlasting source, that is the sun. From the sun this energy reaches the earth's surface and everywhere in the universe, in fact, by the process of radiation. Now this energy, solar energy, which is coming to us by the process of radiation, has got light and heat. Heat part of this radiation we will be studying in kinetic theory of gases along with the radiation, and light part of this radiation will be studying here. So our main focus of this particular chapter is the radiation, that is light, and also some other electromagnetic waves which are traveling with the same speed as that of light. So radiation and matter, why only these two are considered, is the first point that I've made clear. Because the division of universe is in two parts, energy and matter. Energy is mainly received from the radiation from the sun, and hence we consider these two here. Any object you pick up around us is a matter, and when that object, just say fan, is an object, a matter. When fan is in motion, that is converted into some kind of energy, that is kinetic energy, mechanical energy. So whatever we see around us is either matter or energy. You can take any damn example around us, you will find only these two. Now let us see the nature, the basic nature of these two. Radiation can have wave nature as well as particle nature. Similarly, matter can also have wave nature and particle nature. Achha, now why we are dividing matter also in these two? Because it was proved radiation has wave nature, and we have studied different phenomena based on the wave nature of this radiation, mainly with the light. The phenomenon can be reflection, refraction, interference, diffraction, polarization. You will be studying all these phenomena in the chapter called as wave optics. इसमें से आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सीख लिया है. तो ये पहला नेचर है रेडिएशन का, वेव नेचर, जिसमें ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं. These also you have studied well. We will be discussing this. But the second nature is particle nature, that is called as photon, and it was initially assumed by Max Planck, and it was proved by Compton. Compton effect is a most modern effect related to the particle nature of this radiation. So radiation has got these two effects, and hence de Broglie नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी एक अज्यूम किया. देखो, जैसे मैक्स प्लैंक ने ये अज्यूम किया था कि हाँ, अगर वेव नेचर है तो उसको और एक नेचर भी हो सकता है, दैट इज पार्टिकल नेचर, और उन्होंने ऐसा अजम्पशन सामने रखा. उसको प्रूव किया कॉम्पटन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. वैसा ही मैटर, व्हेन यू से मैटर इज अ पार्टिकल. अभी मैटर मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. Let's talk the broader level. Dust particle, wood particle, cement particle, plastic, any material. Even our body is made up of particles. We are made up of matter. तो ये matter मतलब particle होता है जो आप feel कर सकते हो. You can feel that object, that material, and it is called as matter. So it always have particle nature. But then why de Broglie assumed that matter should have wave nature? उन्होंने एक बहुत ही सिंपल बेसिक फाउंडेशन इसके लिए दिया, एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर दैट इट इज, इफ द यूनिवर्स हैज गॉट टू पार्ट्स, मैटर एंड रेडिएशन, एंड फर्दर इफ रेडिएशन हैज गॉट टू नेचर्स, देयरफॉर मैटर मस्ट also have got two natures because of the symmetry
and nature loves symmetry. We observe many things around us. Most of the things are symmetric, including ourselves. So this was the basis, students. See how simple, what simplicity he observed in his explanation. That nature loves symmetry. So are we symmetric. हमारा body symmetric है. हमारा ऐसा नहीं है कि एक साइड में ये ज्यादा रहेगा पार्ट और ये कम है. No, we are symmetric. Likewise, most of the things around us are symmetric. This basis he gave for the second nature of matter, that is wave nature. इसमें ऐसा है स्टूडेंट्स कि रेडिएशन मतलब लाइट मेनली, उसके केस में वेव नेचर was firstly discovered, and for matter it was the particle nature which was firstly discovered. So for radiation, particle nature is a recent one or the most modern one, and for matter wave nature is the recent one or the later one. हम लोग को इस चैप्टर में पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन फोटोन और वेव नेचर ऑफ मैटर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ विल बी डीलिंग. वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्प. देखो अगर कोई मैटर वेव जैसा एक्ट कर रहा है, वेव है, तो उसको वेव लेंथ भी रहेगा. एंड दिस वाज द फॉर्मूला व्हिच वाज गिवन बाय de Broglie टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ मैटर. सो आई थिंक द थिंग्स आर प्रीटी क्लियर नाउ. कौन सा इन्वेंशन पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ, और हम लोग को इस चैप्टर में ये लेटर रिसेंट इन्वेंशंस के ऊपर ही फोकस करना है. नाउ लेट अस डिस्कस दीज इन डिटेल. रेडिएशन का वेव नेचर जैसे डिस्कस किया कि कुछ फिनोमिनल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसा, all these electromagnetic waves they undergo these phenomena. Anything which is said to be wave must follow those phenomena. जब भी हम लोग मैटर का वेव नेचर डिस्कस करेंगे तो उस केस में भी आपको ये फिनोमिनन कंसीडर करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव. वेव शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, interference, diffraction, all these phenomena are shown by wave. So if radiation is a wave, all these electromagnetic waves which are some or the other way part of our life, matter must also be a wave and follow the same phenomena as that of light or radiation. Particle nature of radiation is a photon. ये मैक्स प्लैंक ने पहले assume किया था कि every atom, ये atomic level का बात हो रहा है स्टूडेंट्स, every atom behaves like a tiny oscillator. Every atom behaves like a tiny oscillator and gives out energy in the form of packets or bundles of energy. That each packet, bundle, that quanta of energy is called as photon. And he put forward that energy of this photon is E equal to h nu, where h is Planck's constant, of course named after him, his invention. So Planck's constant है ये 6.63 10 raised to minus 34 joule second, and this term is nu. Nu, it's a Greek alphabet nu, and it means frequency. यहाँ पे उसका मतलब है frequency. Clearly students, energy of photon depends on frequency. So greater frequency radiation will have greater frequency. मतलब greater the frequency of the photon, greater will be its energy. अच्छा, इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि E is equal to H into C by lambda. अच्छा, H as it is लिखा कांस्टेंट है, frequency is speed upon wavelength, you know that better. साउंड के लिए, लाइट के लिए ये एक ही फॉर्मूला है. तो स्पीड अपॉन वेवलेंथ. अच्छा, स्पीड किसका लेंगे? लाइट का, क्योंकि रेडिएशन ये सारे जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से ही जाते हैं. 3 into 10 raised to 8 meter per second, उसका सिंबल होता है C. So hc by lambda is equivalent formula of this energy of one photon. Energy of one photon, this is. तो ये हो गया आपका रेडिएशन का वेव नेचर, पार्टिकल नेचर. वेव नेचर में ये सारे वेव्स आएंगे आपके, और ये वेव्स मैंने जिस तरीके से लिखा है, they are in the descending order of frequency and ascending order of wavelength. Now it should be pretty clear, क्योंकि frequency and wavelength they are inversely proportional. तो जैसे frequency कम हो रहा है, wavelength बढ़ रहा है. So here these electromagnetic waves, they are arranged in the increasing order of their wavelength. This was done by Maxwell. इसीलिए इसको Maxwell's rainbow ऐसा भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. Kindly note down all these points. Maxwell's rainbow, जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं विप्योर, और they are arranged in the increasing order of their wavelength.
वैसा ही इसमें भी ये 7 वेव्स है, दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो गैमा इसका फ्रीक्वेंसी 10⁻22 हर्ट्ज होता है, एक्स रेज 10⁻20 हर्ट्ज, अल्ट्रावायलेट फ्रॉम द सन व्हाट वी आर गेटिंग इज अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज। विजिबल, देखो विजिबल ये एक सेंटर में आएगा यहाँ पे, और इसके रेफरेंस से हम लोग बाकी सबको भी याद रख सकते हैं। विजिबल मींस विबग्योर। सो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 10⁻14 हर्ट्ज के ऑर्डर का होता है। नाउ व्हेन यू से विजिबल, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव, ये सेंटर में है। विबग्योर, इसको कैसे याद रखना है इन 7 को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट, एमसीक्यूज के लिए, एंड इवन योर बोर्ड एग्जाम नाउ यू हैव लॉट ऑफ एमसीक्यूज। तो कैसे इनको याद रखना है? विजिबल विबग्योर वायलेट से शुरू, रेड पे खत्म, तो ये वायलेट से शुरू हो रहा है, तो वायलेट से ऊपर वाला, देखो ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ये तो मैंने नीचे आते समय बताया ना। सो वायलेट के ऊपर अल्ट्रा, अल्ट्रा ऊपर, हायर, हायर को हम लोग अल्ट्रा, सुपर हाई रहेगा तो अल्ट्रा बोलते हैं। सो इट इज अल्ट्रा वायलेट। अच्छा, इसका एंड किधर है? रेड, तो रेड के नीचे इंफ्रा, इंफ्रा मतलब लेसर, इंफीरियर, कम, सो इंफ्रा रेड। सो विबग्योर, विबग्योर ये है, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट, इसके नीचे इंफ्रारेड, ये 3 याद हो गया। फिर ऊपर 2 कौन सा है? गैमा एंड एक्सरे, नीचे 2 कौन सा है? माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। माइक्रोवेव ओवन अपने घर पे जो होता है उसमें ये फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं, रडार में यूज होता है ये फ्रीक्वेंसी, स्पेस रिसर्च में यूज होता है। रेडियो वेव्स जो हम लोग एफएम सुनते हैं वो रेडियो स्टेशंस होते हैं, देयर वी यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻6 टू 10⁻9 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, विजिबल का 10⁻14 है, इंफ्रारेड 10⁻11-12 के ऑर्डर का होता है, माइक्रोवेव 10⁻9 से लेकर 10⁻11 तक जाता है, और रेडियो वेव 10⁻6 से 10⁻9 तक के ऑर्डर का होता है। सो दीज आर योर वेव्स और वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल नेचर वी हैव डिस्कस्ड, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो ऑन द वेवलेंथ। लेकिन ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, देखो इसको पार्टिकल ऐसा क्यों ट्रीट किया गया है? बिकॉज कॉम्पटन फाउंड दैट these photons, you know, they impart their momentum on other photons or any other object coming in their path. Rather, to be precise, it would be right to say when this radiation light interacts with the matter के साथ जब वो interact करता है तो वो अपना momentum उसके ऊपर impart करता है, and hence there we can treat that photon as particle, that light radiation as particle, and we call it as photon. तो बट बेसिकली इट इज वेव ना, लाइट है तो वेव के फॉर्म में रहेगा, तो उसको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक रहता ही है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हम लोग मोमेंटम एनर्जी की वजह से ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से पार्टिकल जैसा कर सकते हैं। मैटर वेव, स्टूडेंट्स, मैटर वेव इज अ थर्ड टाइप ऑफ वेव, ये अपने आप में एक टाइप बन गया व्हेन डी ब्रॉय पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी एंड डेविसन जर्मर प्रूव्ड इट। ये इसका भी प्रूफ लगेगा क्योंकि ये पहले एक assumption था, the possibility, okay? So matter wave is third type of wave। तो पहला 2 कौन सा है? एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है, और दूसरा है मैकेनिकल वेव्स, जैसे हम लोग ना ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, दीज आर मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स, ओके? तो मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा है मैटर वेव्स। अच्छा, रिसेंटली देयर इज अ नोबेल प्राइज विनिंग इन्वेंशन रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल वेव्स, तो ये भी सिलेबस में आ जाएगा। फिलहाल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज इट्स अ रीसेंट इन्वेंशन, तो वो सिलेबस तक आते आते तुम्हारा डिग्री भी क्लियर हो जाएगा, ओके? सो बट दैट वुड बी अनदर टाइप ऑफ वेव इन द फ्यूचर, ग्रेविटेशनल वेव्स। बट हियर विल बी डिस्कसिंग मैटर वेव्स। वेव है तो उसको वेव लेंथ है, ये डी ब्रॉय ने पुट फॉरवर्ड किया था, और इसका पहला नेचर है पार्टिकल, ये सब उसमें इंक्लूड होगा। नाउ ये जो फोटोन है इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एज आई टोल्ड यू, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, मैटर का वेव नेचर स्टडी करना। आई बिगिन विद पार्टिकल नेचर। अभी एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सर हर्ट्ज ड्यूरिंग हिज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन किया पहली बार, मैक्सवेल ने बाद में ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया, लेकिन सर हर्ट्ज वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। During his experiment of those waves, he accidentally found that when ultraviolet radiation is made incident on a metal surface, किसी metal surface पे अगर ultraviolet radiations आ रहा है तो वहाँ से, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हुए दिखाया है। अभी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज cannot flow through the air,
but what I have shown is charge is flowing through the air. So because of this high frequency, देखो इसलिए मैंने frequency का value आपको mention किया, ultraviolet 10⁻16 hertz के order का होता है. Such a high frequency, and high frequency means high energy. High frequency, high energy. So high frequency radiation incident on this. Now these electrons which are bound inside are ejected. वो binding तोड़ के electrons मतलब charge बाहर आता है. When this charge suddenly comes out with such a high frequency radiation, it will appear in the form of spark. अपने घर पे भी हम लोग जब भी उन switches के साथ on off जब भी उसको करते हैं तो कभी कभी गलती से वो वहाँ पे एक spark हम लोग को दिखता है. If we meddle with the equipment, उसको properly operate नहीं किया तो एक spark दिखता है. वो क्या होता है, या फिर कोई short circuit रहेगा तो you will see spark. So what is spark? It is a charge trying to flow through the air. Spark क्या होता है basically? चार्ज ही है वो जो एयर से हवा में से जा रहा है. एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए एयर में से तो चार्ज जा नहीं सकता. बट व्हेन इट ट्राइज टू गो इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द स्पार्क, मतलब चार्ज इज स्पार्क. अच्छा, इसका गिगेंटिक एग्जांपल इज लाइटनिंग. लाइटनिंग स्ट्रोक जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, क्लाउड जब भी क्लैश होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट हुआ है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है. वो चार्ज वहां से जब भी अर्थ तक चैनलाइज किया जाता है थ्रू द एयर, then it is a spark. But that gigantic spark we call it as lightning. वो spark छोटा नहीं होता, it's a huge gigantic. So it's a stream of these sparks connected together and it appears in the form of a stroke called as lightning. So an accidental invention by Sir Hertz led to the discovery of photoelectric effect. PE effect, photoelectric effect. Photo means light. ये जब इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, चार्ज बाहर निकला. ऑफ कोर्स ये चार्ज हमेशा जो स्पार्क के फॉर्म में आता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ कंडक्टर एंड करंट कैन बी सेट अप. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए इस प्रोसेस को फोटो एमिशन ऐसा भी बोलते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो एमिशन, फोटो माने लाइट, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ है. सो फोटो एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. देखो सब लाइट की वजह से हो रहा है, सो फोटो ये एडजेक्टिव उसके साथ हमेशा जुड़ेगा. सो फोटो एमिशन में फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन चैनलाइज्ड प्रॉपर्ली करंट इज सेट अप एंड दिस इज कॉल्ड एज फोटो करंट. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. Students, main aim of this session is to make you clear with all the terms which we'll be using in the chapter henceforth n number of times frequently. तो इसलिए ये सारे terms को आप अच्छी तरीके से लिख लेना. Whatever I am uttering here, you write their meanings in your way, what you understand, and of course we'll be also looking after the definitions of it. Okay? तो ये एक accidental invention हो गया Sir Hertz का photoelectric effect. अब एक experiment का डिस्कशन करेंगे. इन शॉर्ट जो इसका स्टडी आपको बताएगा, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस पर हम लोग ये बाकायदा ऑफिशियली प्रॉपर्ली देखेंगे कि हाउ दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर मेड इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस. देयर विल बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट. देखो ये तो एक्सीडेंटल इन्वेंशन था ना, तो उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके चैनलाइज भी करना है. लाइट आएगा, मेटल पे गिरेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ्लो होंगे, करंट सेट होगा. Then this should be your complete process of photoelectric effect, giving you photo current.